guide and a source of inspiration, isn't it? You all are well acquainted with sir and his capabilities, and today we all are celebrating what? International Day of Women and Girls in Science. International Day of Women and Girls in Science. ठीक है. हम यूजुअली जो है हमेशा बोलते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती, है ना? But still we have very few names to say and tell in the field of science and technology. I still remember the day जब ISRO was doing this Chandrayaan event and all the women were sitting, ठीक है ना, ISRO चैम्बर में बैठी हुई थी लेडीज, तो there was एक टेंशन का माहौल, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट वाज देयर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन सब लेडीज के लिए चैलेंज ये नहीं था कि ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं था कि चंद्रयान प्रॉपरली लैंड करता है या नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि एज लेडीज एज फीमेल्स हम लोग फेल ना हो जाए, ये लोग कहेंगे लड़कियां थी और नहीं कर पाए. क्या बात. So we could understand the kind of stress they would have faced. That thing in mind, so ultimately the organizations, they decided to celebrate a day keeping this stress in mind as the International Day of Women and Girls in Science, that is celebrated on 11th of February every year. Okay. So today we are celebrating it again. Anyone can tell me the theme for this year? So theme is unpacking STEM careers, her voice in science. तो अनपैकिंग स्टेम कैरियर्स में इसमें जो टर्मिनोलॉजी स्टेम है दैट इज ऑल इन कैपिटल्स. तो स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. So what we have as theme, we have unpacking STEM careers, her voice in science. How the girls will be doing great in their careers ahead in all these fields. In fact, we already are doing great, but still there are few lacunae in the system. And focus is basically on the need to break the stereotypes and promote the role of girls in this field. We definitely understand that we have pioneers like Marie Curie, and we always take her name, and she proved that women can shape and lead the scientific disciplines. But yet her standing as one of the few widely recognized women scientists, revealing the pressing need to advance gender equality and celebrate more diverse contributions. Right? So closing the gender gap in science is the basic concern for all of us in today's world. मैंने वही कहा, हम सब कुछ करते हैं, but still we have very few names to take and very few names to tell the world that yes, women is contributing, definitely contributing. So let us pledge today that even in this field we will excel. अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेल्स एक्सेल नहीं करेंगे या नहीं कर रहे हैं, they are already doing. बट अगर गर्ल्स में कहीं भी इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स है या इस तरह की कोई लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो वी एज द एम्बेसडर्स वी प्लेज दैट वी विल कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी एंड विल मेक दिस थीम सक्सेसफुल. दैट वी विल, मैं इसलिए आपको हमेशा कहती हूँ, जब भी आप कहीं फील्ड में जाते हैं, आप जो भी पढ़ते हैं उसको लोगों को बताएं, उन तक पहुंचाएं, तभी उसका कोई फायदा. अब सर उसकी एक लाइव एग्जाम्पल है, विद्यार्थी सर जहां भी जाते हैं ज्ञान बांटते हैं. And today we'll congratulate him for his book, Pushpit Pulkit Patpe. I'm really lucky to get this. तो आप भी पढ़ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं सर का कंट्रीब्यूशन कि इतना नॉलेज गेन करने के बाद, इतना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सर पोइट्री भी जो है वो भी लिख रहे हैं. तो यू कैन बी वर्सेटाइल एंड यू कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट. सर को रिटायर हो भी इतना टाइम हुआ, लेकिन स्टिल ये भी सर का ही एक इनिशिएटिव था. सर ने कल मुझे कॉल किया, मैसेज किया कि मैडम क्या हम इस थीम पे, तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि फीमेल होने के नाते भी मैंने इस चीज के बारे में इतना डीपली नहीं सोचा, बट सर ने मुझे आइडिया दिया, व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट. थैंक यू सो मच सर. और सर हमारे लिए आए हैं ये हमें दिखाने के लिए कि हम डिफरेंट ट्रीज को कैसे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. और सर के साथ चाय भी पी के आए, जो फ्रिलर ट्री, स्पिंडल ट्री के फ्लावर्स की उसकी बार्क की जो चाय है वो आपके सामने यहाँ रखी है, आप देखेंगे. तो सर जो है वो पूरे का पूरा एनसाइक्लोपीडिया तो है ही है, पर अब मैं कहूँगी सर रेसिपीज का भी भंडार है. यू कैन एंजॉय एंड रिलिश डिफरेंट थिंग्स. तो अब मैं सेमल की कलियां और
अर्ध खिली कलियां, जिनमें से कोमल पंखुड़ियों को एक तरफ निकाल कर रख लिया गया और मोटा मांसल अंकुड़ियों को, कप अंकुड़ियों की प्याली को इस तरह से तोड़कर अलग कर लिया गया। और जो कलियां हैं, कलियां कुछ इस तरह से दिखती हैं, सेमल की कलियां, फ्लावर बड्स। ये फल नहीं है क्योंकि अभी बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, तो अभी ते अर्ध खिली पुष्प कलियां हैं सेमल की, जिसको हिंदी में शिम्बल भी कहा जाता है और डोगरी में सिंबल, और संस्कृत में इसका नाम शालमली भी है। शालमली से सालमाल या मालावारिकम इसका पुराना वानस्पतिक नाम था। एक और नाम इसका मिलता है ग्रंथों में, वो है यमद्रुमा। वो इसलिए कि इसके ऊपर शाखाओं पे, तने पे बहुत कांटे होते हैं और माना जाता है कि नरकलोक में यम इसी की लाठी लेके यातना देता है जिन्होंने कुकर्म किए हों। तो ये मौसम, सेमल का मौसम, फाल्गुन महीना, और कई प्रकार के परिंदों की दावत होती है इन फूलों पे। फूलों के अंदर के मीठे रस को पीने का चाव पाले रखते हैं कई किस्म के परिंदे, चाहे वो लहटोरा हो, चाहे कसई चिड़िया हो, शकरखोरा हो, चाहे फूल चुगी हो, चाहे परेवा हो, हरियल हो, कौवा हो, मैना हो, टेसुआरी ही क्यों न हो, चाहे कोतवाल भुजंगा हो, चाहे दूधराज, चाहे सुरमई चिड़िया, चाहे बुलबुल, चाहे टकाचोर, महालत, खपरी, लांगड़दुम्बा, कुछ भी कह लीजिए। अगर आपको परिंदे देखने का शौक है तो आजकल जो सेमल के जो पेड़ हैं, इन पर खास किस्म के परिंदों का तांता लगा हुआ है। तो किसी जगह से आप पोजीशन लेकर के सुबह सवेरे सूरज अरुणोदय से पहले ही और अरुणोदय के बाद भी आप 9-10 बजे तक इन फूलों को अगर निहारते रहेंगे तो फिर आपको परिंदों के भी दर्शन होंगे और पता चलेगा कि एक सेमल का पेड़ बोम्बैक्सीबा कितने परिंदों को सपोर्ट करता है, वन्य जीवों को किस तरह से आश्रय देता है। कई किस्म के शलभ, मॉथ्स इस पर पलते हैं। हनी बीज, मधुमक्खियां तो आती ही हैं और पराग भी चुनती हैं। और ये होली के पर्व पर होली डंडा के रूप में इस पेड़ का डंडा भी होलिका दहन के समय रखा जाता है। भील वन जाति के लोग इसको अपना कुल देवता के रूप में पूजते हैं, सेमल के वृक्ष को। और सेमल के नाम से कई जगह भी हैं, जैसे जम्मू में सिंबल कैंप है, या कानाचक में सुई सिंबली, यहाँ पे प्राचीन रघुनाथ जी का मंदिर है जो महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनवाया था 18वीं सदी में। बेशक अब वो जर्जर हालत में है, लेकिन उस जगह का नाम सुई सिंबली इसी पेड़ से है, इसी फूल वाले लेकिन कांटेदार पेड़, जिसके पत्ते सर्दियों में झड़ जाते हैं और जो नए पत्ते आते हैं वो कहीं बैसाख में आएंगे और फागुन में सिर्फ फूलों का सौंदर्य हमें नजर आएगा। तो ये बोम्बैक्सीबा, कभी इसको
स्टरकोलिएसी में भी रखा गया, इसकी अपनी कुल अपना परिवार बॉम्बेकेसी में भी रखा गया। लेकिन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स डीएनए के आधार पर, डीएनए सीक्वेंसेस का अध्ययन करने के आधार पर अब इसको भिंडी परिवार, सोंचल परिवार में ही शामिल कर लिया गया है। तो हम कह सकते हैं सेमल का परिवार भिंडी परिवार है। जिस तरह से हम भिंडी खाते हैं उसी तरह से इसकी कच्ची पुष्पकलियों का भी स्वादिष्ट व्यंजन हम बना सकते हैं, या फिर कच्चे फलों का। लेकिन फल तो हमें बैसाख महीने में मिलेंगे, और तब तक कुछ पुष्पकलियाँ मुझे उपहार के रूप में मिली हैं। और इस वर्ष जो 21 मार्च को जंगलों का दिवस होगा, उसका थीम जो है ना वो भी यही है, फॉरेस्ट एंड फूड्स। तो कई प्रकार के कंदमूल, फूल, फल आहार के रूप में हमारे पूर्वजों ने प्रयोग में लाए, क्योंकि वन से ही निकला था हमारा पूर्वज, और उसको कई किस्म के वनस्पतियों, पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी थी वैदिक युग से ही। और आज तक ये इसकी जो जड़ होती है, खासकर छोटे पौधे की, उसको सेमल मूसला कहा जाता है। और सेमल के तने से गोंद भी निकलता है, जिसको मोच रस बोला जाता है। कमर की दर्द के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है। और इसके जो कांटे होते हैं उनका पाउडर लगाने से त्वचा के कील मोहन से भी ठीक होते हैं। एक एक जगह से हथेली के आकार की 5-7 पत्तियों का एक समूह होता है, और नीचे एक साझी डंठल होती है। तो ऐसे पत्ते को मल्टीफोलिएट या पामेट कंपाउंड लीफ कहा जाता है। और फूलों में अनगिनत पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर निकाल दिए गए हैं क्योंकि वो खाद्य नहीं होते हैं। लेकिन वो अगर हम निहारें तो पुंकेसर ऐसे लगता है जैसे शेविंग ब्रश हो। और कुछ और इसके निकट संबंधी और भी पेड़ हैं जिनको शेविंग ब्रश ट्री भी कहा जाता है इसी आधार पर। लेकिन सेमल को कहा जाता है रेड सिल्क कॉटन ट्री। ये भारत का अपना पेड़ है। बॉम्बैक्सीबा पहला नाम था सालमालिया मालाबारिकम, इंडियन कपोक ट्री, जो कई किस्म के परिंदों को आकर्षित करता है जब ये पुष्पित होकर अपने रंग बिखेरता है बसंत के मौसम में, बसंत उत्सव में, मदनो उत्सव में। एक ऐसा फूल वाला पेड़ जिससे हम सर्व परिचित हैं, लेकिन इसके आयुर्वेदिक औषध गुण भी हैं और खाद्य व्यंजन भी इसके बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ तकिए और लाइफ सेविंग जैकेट्स के लिए रुई भी प्रयोग में लाई जाती है। और कई किस्म के वन्य जीवों का भी ये पेड़ जो है ना आकर्षण का केंद्र होता है, आहार के लिए या मीठा रस पान करने के लिए।